Welcome to Aswani classes coordinate geometry part 10. In this part we are going to solve 4 problems 4 based on the results already discussed in the previous videos. So if anyone is new in this video, you must go through the previous video. The problems will be solved by the result. Those results already discussed in part 9 and 8 and 9. Okay, so you must go through part 8, 9 and then come to part 10. So these are the 4 problems in this part. So let us start from here one by one. We want to solve these problems. Let us see first question number 4, so that after solving this we can rough and get sufficient space. Come to question number 4. Question is, find the area of the triangle formed by straight line this and this. These are the 3 straight lines, represent 3 sides of a triangle. Then you have to find area of the triangle. Okay, so in the last video we already discussed that area of the triangle bounded by 3 lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0 is given by determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 its square divided by 2. This is not determinant side, means magnitude. This is cofactor of this c1, cofactor of c2, cofactor of c3. This will gives you area of the triangle. Where what is this? This is cofactor of this c1 element. So this is your a2 b2 a3 b3. What is c2? C1 c2. C2 is a3 b3 a1 b1 and c3 means cofactor of this is taken by a1 b1 a2 b2. In this way we can find c1 c2 c3 and area of this determinant. ये जो determinant है, its value is c1, this capital C1 plus c2 capital C2 plus c3 capital C3. This will gives you value of this determinant and its square can be taken. So this is already discussed in the previous video. We use here this. Here area of triangle will be first determinant. What will be determinant? 7 minus 2 10. 7 minus 2 10. A2 b2 c2, it will be 7 2 minus 10. 7 2 minus 10. Then a3 b3 c3, 9 1 2. 9 1 2. This is your determinant, its square by 2 magnitude value c1 c2 c3. These things will be calculated. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा. सो लेट अस सी. ये रिजल्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है ना, फिर से एक बार रिपीट कर दिए ताकि. नाउ let us find the area of the triangle. Separately we first find c1 c2 c3. What will be c1? c1 होता है a2 b2 a3 b3. a2 b2 में ना देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 है. ठीक है, a2 b2 a3 b3 7 2
9 1. This is your C1. What will be C2? C2 will be A3 B3, A1 B1. ये है A3 B3, ये है A3 B3, A1 B1, ये 7 - 2. एक बार आप सीख लीजिए बस, फास्ट होगा फिर. A1 B1, A2 B2, 7 - 2, ये है A1 B1 और A2 B2, 7 2. Simple. Now find its area. 7 minus 9 into 2, 18, minus 11. 9 into minus 2, minus 18, minus 7 into 1, 7. Okay. So this will be minus 25. What will be this? 7 into 2, 14, minus 7 into minus 2, minus 14, minus 14, minus minus plus, so it is 28. In this way we can easily find value of second order determinant. Okay, C1, C2, C3 is here. Now you find value of this determinant. 7 minus 2, 10, 7 2 minus 10, 9 1 2. What will be its value? Direct you can expand as you know how to find value of a determinant, or simply C1, capital C1. C1 means these are C1, C2, C3. 10 into cofactor of this 10. Cofactor of this 10 means this C1 minus 11 plus this is C2 minus 10 into cofactor of this minus 10 means cofactor of small c2, that is capital C2, minus 25 plus C3, this 2, into cofactor of this 2 means this 28. In this way we can find value of this determinant. I think this will come 196. You will simplify it, you will get 196. Okay, easily you can multiply and get the answer. Now what will be this? Can you find its area? 196 its square means 196 into 196 twice, and here 2 into C1 minus 11 into C2 minus 25 into C3 minus into C3 28. So after simplifying you can get the answer. Let me write the answer. You will calculate this by multiplying. Okay, its answer should come 686. Its answer will come 686 by 275. 686 by 275. This will be the answer. So I hope you can do it now. You can put this value, its value will come 196. 196 into 196, its value. You will write minus 11 into minus 25 into 28. It will gives you positive. अगर नेगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव कर लेते. मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, करके इतना आंसर आ जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव भी आता तो उसको पॉजिटिव कर लेते. यहाँ तो 2 माइनस है तो ऐसे ही पॉजिटिव आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. ठीक है, ओके. सो यू विल कंप्लीट एंड गेट द आंसर. नाउ कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन. Find the area of a pentagon whose vertices are, these 5 vertices are given. As we know, ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं कि एक ट्रायंगल है. If its 3 vertices are x1 y1, x2 y2, x3 y3,
x3 y3. Then what will be its area? Its area is given by half within bracket determinant x1 y1 x1 y1 x2 y2 plus x2 y2 x3 y3 plus x3 y3 x1 y1 is the area of the triangle. Okay, this result we already did. One more result, let us see, which will be used here in the next question. This is area of triangle ABC, suppose. Now if these vertices A, B, C, these are the vertices of the triangle. If these points are in a line, suppose here A, here B, here C. If A, B, C points are in a line, then is it possible to form a triangle? No. Triangle is not possible means, in other word, you can say area of the triangle whose vertices A1, B1, C1 is equal to 0. ये तीन वर्टिसेस है ए बी सी, ये तीनों वर्टिसेस अगर एक ही लाइन में होगा तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, मतलब जो ट्रायंगल है इसका एरिया 0 होगा. ट्रायंगल बनेगा नहीं मतलब ट्रायंगल का एरिया 0. सो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0, देन दीज पॉइंट्स मस्ट लाई इन ए लाइन. ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, उसके लिए जरूरी है कि इस ट्रायंगल का एरिया 0 आए. इस ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे. thus इफ ये डेल एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आता है, देन ए बी सी आर कोलिनियर. इसको याद रखिएगा. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो आप बोल सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 points are collinear. If these are collinear, then area of triangle whose vertices a1 b1 c1 must be 0. अगर तीन पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो तीनों को वर्टिसेस लेके अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा. ट्रायंगल का एरिया 0 तो तीनों वर्टिसेस कोलिनियर होगा, तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा. ये भी एक रिजल्ट है, इसको आप जानेंगे. अच्छा, अब ये है पेंटागन. पेंटागन मीन्स हैविंग 5 वर्टिसेस. ऐसा 5 वर्टिसेस है. ऐसा एक है A 1 1, B ये है 7 2, C 7 -3, D ये है आपका 12 and 2, एंड E है 0 -3. 3 वर्टिसेस था, इसमें 5 वर्टिसेस है. इसका एरिया निकालना है. तो व्हाट विल बी इट्स एरिया? इसी को एक्सटेंड करते हैं ना, 4 वर्टिसेस के लिए, 5 वर्टिसेस के लिए, 6 वर्टिसेस के लिए. यहाँ 5 वर्टिसेस हैं तो इसका एरिया होगा वैसे ही हाफ इट्स एरिया. ए रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस पेंटागन विल बी योर हाफ. ऐसे x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3. सेकेंड थर्ड में होगा x3 y3 x4 y4, x5 y5 तक है ना इसमें, प्लस x4 y4 x5 y5 प्लस लास्ट में होगा x5 y5 और यहां हो जाएगा x1 y1. ये होगा एरिया ऑफ पेंटागन. ट्रायंगल हो तो x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3, यहाँ x3 y3 x1 y1 ट्रायंगल के लिए यहीं तक. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो फिर x4 y4 x1 y1 यहाँ तक लास्ट हो जाएगा.
और पेंटागन है मीन्स 5 वर्टिसेस हैं, तो उसका यहां तक कंटिन्यू करेगा। ये होगा एरिया ऑफ पेंटागन। अब इसका एरिया आप आराम से निकालिए, हाफ x1 y1, ये देखिए सिंपल, x1 y1 x2 y2, वेरी सिंपल, x2 y2 ये 7 2, x3 y, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x2 y2 then x3 y3 7 minus 3 प्लस x3 y3 ये 7 minus 3, x4 y4 ये x4 y4 12 2 प्लस x4 y4 means this 12 2, x5 y5 0 minus 3, then x5 y5 means 0 minus 3, x1 y1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम ब्रैकेट कर दीजिए, देखिए सिंपल, ये है x1 y1 x2 y2, इसको लिख दीजिए, फिर ये इसी को रिपीट कर दीजिएगा x2 y2, फिर ये x3 y3, फिर ये ऊपर चला जाएगा x4 y4, फिर ये ऊपर चला जाएगा x5 y5 नीचे, फिर x5 y5 x1 y1, ये है x1 y1 1 1, in this way. This will gives you area of the pentagon. You can simplify half 2 minus 7 plus 7 into minus 3 minus 14, okay, plus 7 into 2 14, बीच में माइनस होता है, 12 into minus 3 minus 36, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए इसको, 36 प्लस 12 into minus 3 minus 0 into 2 0, 0 into 1 0 minus 1 into minus 3 minus 3 minus minus plus 3, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर हम लिख देते हैं, आप लोग प्लस माइनस कीजिएगा उसको, इट्स आंसर विल कम 137/2, चूंकि एरिया है ना तो दिस मच स्क्वायर यूनिट लिखेगा इसको। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल कम एज ए आंसर, इसको ऐड करके आप मिला लीजिएगा, इतना आ जाएगा, वो आंसर होगा आपका, ओके। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस पेंटागन। जो भी एरिया आता है ना, शायद इसके पहले वाले में एरिया में नहीं लिखे थे, उसमें भी लिख लीजिएगा, एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट, उतना स्क्वायर यूनिट में आंसर होगा, चाहे वो ट्रायंगल का एरिया हो, पेंटागन का एरिया हो, कोई भी एरिया हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा स्क्वायर यूनिट। So you can find so I hope you have understood how to find area of a pentagon, area of a triangle whose sides are given as a equation of a line. Now let us see this question number 2. ये देखिए, सो दैट द पॉइंट A0 0B11 आर कोलिनियर। अभी जो रिजल्ट डिस्कस किए, ये 3 पॉइंट है, A0, एक पॉइंट है 0B एंड 11, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ये आपको शो करना है। इफ दिस, यानी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर ये 1/a + 1/b = 1 होता है, तो ये क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर हैं तो ये तीनों पॉइंट को अगर एक ट्रायंगल का वर्टिसेस ले लें, A0 0B और 1 1 को, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 0। प्रीवियस वीडियो we already discussed, if area of a triangle comes 0 then only vertices are collinear. If vertices are collinear, area must be 0. So if we take A0 0B and 1 1 as a vertices of a triangle,
then area of triangle must be 0. Then only these 3 points will be collinear. So we suppose, let this point A0, 0B and 1 1 are collinear. हम लोग मान लेते हैं इसको collinear. Then area of the triangle whose vertices are these points A0, 0B and 1 1 must be equal to 0. That's not it. Now if area of triangle whose vertices this equal to 0, तो area of triangle क्या होगा, जिसका vertices ये है, ये और ये है. These points are just like x1 y1 x2 y2 x3 y3. So area of triangle half x1 y1 x2 y2. This is x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 प्लस ये ऊपर जाएगा x2 y2 है ना, एंड x3 y3, then plus x3 y3 x1 y1 means A0. This will be area of the triangle and this should be equal to 0, and from there this relation will come 1 by A plus 1 by B equal to 1. area of triangle 0 होने से कोलिनियर होगा, और ये कोलिनियर होगा जब बोल रहा है कि ये कंडीशन होगा. कोलिनियर तभी होगा जब ये कंडीशन होगा, तो कोलिनियर ले लिए और ये कंडीशन ले आएंगे. We have already taken the points are collinear, so this condition must come. So let us simplify and see the condition is coming or not. Half what will be A into B, AB minus 0 plus 0 minus 1 into B, B plus ये ब्रैकेट होगा यहाँ 1 into 0, 0 minus A into 1, A plus equal to 0. So from here half ब्रैकेट में आएगा ये ए बी, यहाँ होगा माइनस बी माइनस ए, है ना, इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज ये हाफ उधर चला जाएगा 0, ए उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बी उधर जाएगा प्लस होगा, आपको मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू ए बी. राइट, यहां से मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू ए बी. डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, देखिए आपको मिला है ए प्लस बी इक्वल टू ए बी. दोनों साइड आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए. We can divide both side by the same quantity. So let us divide both side by AB. Then what will happen? A by AB, 1 by B plus B by AB, 1 by A, and this side it is 1. So in this way finally we get 1 by A, this result will come 1 by A plus 1 by B equal to 1. Okay. So in this way we can get the result. So I hope you have understood the problem. Now come to question number 1. Question number 1 is prove that the coordinates of the vertices of an equilateral triangle cannot be rational. First of all, try to understand the question, what the question asks. Question is, prove that
the coordinates of the vertices of an equilateral triangle. There is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal, then it is called equilateral. Okay. Question is vertices of an equilateral triangle. Suppose x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle. Cannot all be rational. Coordinates of the vertices, these are called coordinates. x1 is a coordinate, x coordinate of the vertex. This is y coordinate. This is x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. So these x1, y1, x2, y2, x3, y3, these are called coordinates of the vertices. Question is to prove the coordinate of the vertices of an equilateral triangle are not all rational. Means you have to prove x1, x2, x3, y1, y2, y3. These are the coordinates of the vertices. These all are not rational. To prove these are all not rational. ये आपको प्रूफ करना है. ये x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये जितने 6 जो नंबर्स हैं ये सब का सब रैशनल नहीं हो सकता इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं. लेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle. ना इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. मान लिया कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle. Then these 6 number x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये सब रैशनल नंबर नहीं हो सकता. इसमें से कोई ना कोई इरेशनल होगा. ठीक है. जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा लेते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. ये सब नंबर रैशनल होगा ये पॉसिबल नहीं है. कोई ना कोई नंबर जो है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा. ये आपको प्रूव करना है. टू प्रूव दीज आर ऑल नॉट रैशनल. क्वेश्चन आप समझ गए. सो लेट अस सी हाउ. प्रूव करना है कि ये सभी रैशनल नहीं होंगे. हम लोग मान लेते हैं लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिखिए एक ही बात है. आर ऑल रैशनल. हम लोग मान लेते हैं कि सब रैशनल है थोड़ा देर के लिए. प्रूफ करना है कि सब रैशनल नहीं हो सकता है. ऑल आर नॉट रैशनल, दैट यू हैव टू प्रूव. वी हैव कंसीडर्ड, ये माने हैं ये कि चलिए सब रैशनल है. तो सब रैशनल है तो उसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का. एरिया का फॉर्मूला बैठाइए. यही ना होगा x1 y1 x2 y2 डिटर्मिनेंट प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1. ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. अच्छा, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लिखते हैं. इसको तोड़ेंगे तो ये होगा x1 y2 x2 y1. ओके. प्लस इसको तोड़ेंगे तो x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस इसको तोड़ेंगे x3 y1 माइनस x1 y3. दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके. अच्छा,
वी ऑलरेडी एज्यूम्ड, ये माने हैं हम लोग कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऑल आर रैशनल, ये सब रैशनल है, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये सब रैशनल है। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल ऑलवेज गिव्स यू ए रैशनल, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका प्रोडक्ट एक रैशनल होगा। उसी तरह से ये भी एक रैशनल होगा। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस एक रैशनल आता है, दो रैशनल नंबर को ऐड कीजिएगा तो भी रैशनल आता है, दो रैशनल का डिफरेंस भी एक रैशनल होगा, तो इसका मतलब ये पूरा एक रैशनल नंबर होगा। अच्छा, ये रैशनल है, ये रैशनल है, सो दिस प्रोडक्ट विल गिव्स यू ए रैशनल, इज नॉट इट? जस्ट अ मिनट, see, x2 is a rational, y2 is a rational, so this is a rational, similarly this is a rational, so their difference will gives you a rational। ये rational हुआ, ये rational हुआ, तो उसका difference भी rational आएगा। नहीं, इसी तरह से x3 rational है, y1 rational है, तो ये rational होगा, ये भी rational होगा, तो उसका डिफरेंस भी एक रैशनल आएगा। मतलब ये पूरा एक रैशनल नंबर आएगा, ये पूरा एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तीनों को ऐड कीजिएगा तो तीन रैशनल नंबर को ऐड करने से एक रैशनल आता है, ये तीनों का सम रैशनल होगा। और उस रैशनल को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरी एक रैशनल नंबर को एक दूसरा रैशनल नंबर से डिवाइड करने से भी रैशनल ही आता है। तो ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा, जो भी आएगा रैशनल नंबर आएगा, राइट, इफ ऑल द वर्टिसेस आर रैशनल। अच्छा, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC is what? Is an equilateral triangle, and area of triangle, equilateral triangle का ये फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये नहीं, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड स्क्वायर क्या होगा? कोई भी एक साइड ले लेंगे आप, तो कोई भी एक साइड ले लेंगे, स्क्वायर है, तो जैसे ये साइड लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, रूट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है ना, डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई एक साइड, तीनों साइड इक्वल होगा, ये आएगा। अब ये x1 x2 ये दोनों रैशनल है, तो उसका डिफरेंस भी रैशनल आएगा, रैशनल का स्क्वायर रैशनल आएगा, ये डिफरेंस भी रैशनल आएगा, रैशनल का स्क्वायर रैशनल आएगा, फिर दो रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो ये आपको फाइनली मिलेगा √3/4 इंटू, ये ब्रैकेट में पूरा एक रैशनल आएगा। ठीक है, अब ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये √3 तो इरेशनल है ना, तो एक रैशनल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इरेशनल आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में रैशनल आएगा, उसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल बनेगा, इरेशनल को 4 से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल रहेगा, इरेशनल को किसी रैशनल से डिवाइड करने से, जैसे √2 इरेशनल है ना, इसको आप किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा इरेशनल ही होगा। तो √3 इंटू रैशनल इरेशनल डिवाइडेड बाई 4 इरेशनल मीन्स दिस कंप्लीट विल गिव्स यू इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां रैशनल आ रहा था, सब वर्टिसेस को अगर रैशनल लेते हैं तो ये आ रहा है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो √3/4 साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इरेशनल आ जाएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। Area of an equilateral triangle always gives you an irrational value. Rational is not possible, and hence all the vertices are not possible to take rational. हम लोग सारा vertices को rational लेने से area of triangle rational आ गया ना,
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख रहे हैं √3/4 साइड स्क्वायर होता है, रैशनल मिला के वो इरेशनल आता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जब भी निकालिएगा इरेशनल आएगा, लेकिन अगर वर्टिसेस सबको रैशनल लेते हैं तब तो रैशनल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो सारा वर्टिसेस है ये सबको आप रैशनल नहीं ले सकते, एंड हेंस vertices of an equilateral triangle cannot all be rational। तो लिखिएगा एक लाइन, hence vertices of an equilateral triangle cannot all be rational। सारा जो है रैशनल नहीं हो सकता है, hence proof। लिख लीजिएगा इसको। सारा अगर रैशनल ले रहे हैं तो फिर एरिया भी रैशनल आ रहा है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो भाई √3/4 साइड स्क्वायर आएगा, √3 है उसमें इनटू में, √3 इरेशनल है, इसलिए एरिया तो इरेशनल आना चाहिए, इसलिए सारा वर्टिसेस को रैशनल नहीं ले सकते। लिखिएगा, हेंस ऑल द वर्टिसेस कैन नॉट बी टेकन रैशनल। प्रूफ इन दिस वे you can give the proof of this first question। Okay, so I hope you have understood these 4 sum for class 10 students up to here। coordinate geometry this much, इतना ही coordinate geometry class 10 का काम का है, 10 के सिलेबस का है। इसके बाद आगे जो 11 ऑनवर्ड होगा वो स्पेशली फॉर क्लास 11 के लिए होगा। क्लास 11 में ये सब है, ये सब भी है क्लास 11 में, ऐसा नहीं कि ये 10th का है। 10th का पूरा सिलेबस है, फिर 11th का भी अपना है। ओके, 10th वाले भी जो एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, आगे 11 के लिए जानना चाहते हैं, यू कैन कंटिन्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11, पार्ट 11, 12, 13, 14, ये पार्ट कम से कम 40-50 तक कंटिन्यू करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड फॉर क्लास 11 ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो फ्रॉम पार्ट 1 ऑनवर्ड। क्लास 11 के लिए पार्ट 1 से लेके सब, क्लास 10 के लिए शुरू का बेसिक्स यहाँ तक काफी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।